हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर 9 रिदम्स ऑफ नेचर पार्ट 2 क्लासरूम एक्टिविटी सीजन चार्ट। एक क्लासरूम एक्टिविटी गिवन है जिसमें मौसमों से जुड़े चेंजेस का चार्ट बनाया जाएगा। ऑल ईयर लॉन्ग you have been curious explorers of nature, observing plants, animals, sunlight, water and human activities. पूरे साल भर तुम नेचर के क्यूरियस एक्सप्लोरर बने रहे हो और प्लांट्स, एनिमल्स, सनलाइट, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज को ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया है। नाउ it is time to bring all your learning together and understand the patterns of change that happen throughout the year. अब समय है कि पूरा साल भर की सारी लर्निंग को एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि हम समझ सके कि पूरे साल नेचर में किस तरह के चेंजेस होते रहते हैं। Step 1, making a chart for classroom. Let us begin by preparing a large wall size chart in your classroom to note the observation from our journals. क्लास में एक बड़ा चार्ट बनाया जाएगा और उसमें अपनी observations लिखी जाएंगी. This will help us bring all our observations on one chart so we can see the full picture. इससे सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही चार्ट पर दिखेंगी. The chart will have the following time periods: April to June, July to September, October to December and January to March. Marked in columns. The themes क्या होंगे इसके? Plant life, birds and animals, air, heat and light, water and water bodies and human activities listed in row. Plants, water bodies, human activities इन सबको एक रो में लिखा जाएगा. आइए इस चार्ट को समझते हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इसे लिखते हैं. चार्ट टेम्पलेट, इसका थीम एंड टाइम पीरियड दिया गया है. टाइम पीरियड है अप्रैल टू जून. थीम प्लांट बेस्ड. अप्रैल टू जून में क्या चेंजेस होते हैं नेचर में? प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं और फ्यूअर फ्लावर्स रह जाते हैं. जुलाई टू सितंबर रेनी सीजन होता है. प्लांट्स ग्रो फास्टर. Plants grow fast, greenery everywhere. October to December, leaves fall from trees. January to March, new leaves and flowers grow. Birds and animals में क्या changes होते हैं? Animals look for shade. July to September, frogs, insects appear, birds active. October to December, migratory birds arrive. January to March, animals active, birds build nest. Air, heat and light. क्या चेंजेस होते हैं इनमें? अप्रैल टू जून में वेरी हॉट, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, बहुत ही गर्मी होती है. जुलाई टू सितंबर, ह्यूमिड क्लाउड स्काई. October to December, cool air, mild sunlight. और January to March, pleasant weather, gentle sunlight. Water and water bodies, इनमें क्या changes होते हैं? April to June, water level low. July to September, rivers and ponds full. October to December, water level starts reducing. Next, January to March, clean and calm water. ह्यूमन एक्टिविटीज, इनमें क्या चेंजेस होते हैं? क्या करते हैं ये? अप्रैल टू जून, wear cotton cloths, drink more water. July to September, farming and showing crops. October to December, harvesting crops. January to March, outdoor activities increased. Step 2, fill the chart. For each of the boxes, for example, April to June for plant, one of you can stand up and ask for observations from the class. Each of you may share your observations from your journal, discuss and write the main observations on the chart. चार्ट की हर खाली बॉक्स, जैसे प्लांट्स लाइफ के लिए अप्रैल से जून वाला टाइम के लिए तुम में से
एक बच्चा खड़े होकर पूरी क्लास में उस टाइम की ऑब्जर्वेशंस, यानी तुमने जो चीज ऑब्जर्व की है नेचर में, अपनी जर्नल में लिखी हो, वो बातें बतानी है। फिर हर बच्चा अपनी जर्नल में लिखी हुई अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस बता सकता है। सब मिलकर उन बातों पर डिस्कस करो और जो सबसे मेन बातें हो उन्हें चार्ट की उस बॉक्स में लिख दो। आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं आपने जो ऑब्जर्व किए हो। जैसे इस पिक्चर में बच्चे क्लास में बोर्ड के पास खड़े हैं और चार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, भर रहे हैं। सब बच्चे मिलकर ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं और एक एक करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये टीम वर्क और ग्रुप लर्निंग को दिखाता है। The next student can stand up to fill the next box in a similar way. अगला स्टूडेंट खड़ा होकर उसी तरह चार्ट का अगला बॉक्स फिल करेगा। This way, all your observations will be on your chart in the classroom. इस तरह क्लास के चार्ट पर सभी बच्चों की ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। Now the chart is ready for everyone to see and learn. अब चार्ट पूरा हो गया है और सभी बच्चे उसे देखकर सीख सकते हैं। स्टेप 3 क्या है? ट्रैकिंग चेंजेस इन अ ईयर। अभी साल भर में जो चेंजेस हुए हैं उनको ट्रैक करना है। It is time to take a closer look at the patterns of change you have noticed throughout the year. अब साल भर में हुए चेंजेस को ध्यान से देखने का समय है। Let us form 5 groups. Each group can choose from the chart and study the patterns of change observed across different time periods during the year. अब 5 ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप चार्ट में से एक थीम को चुनेगा और देखेगा कि अलग अलग समय में उस टॉपिक में क्या चेंजेस हुए। ग्रुप 1 क्या होगा? प्लांट लाइफ। ये क्या ऑब्जर्व करेगा? प्लांट लाइफ के ऊपर, प्लांट्स में हुए चेंजेस। ग्रुप 2 बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी और जानवरों में चेंजेस। ग्रुप 3 एयर, हीट एंड लाइट, हवा, गर्मी और लाइट, रोशनी में चेंजेस। ग्रुप 4 वाटर एंड वाटर बॉडीज। ग्रुप 5 ह्यूमन एक्टिविटीज, लोगों के कामों में क्या चेंजेस आया हो। Create a poster on your theme. Present how your theme changed throughout the year. Be creative. इस टॉपिक पर एक पोस्टर बनाओ, दिखाओ कि पूरे साल में तुम्हारे थीम में कैसे चेंजेस हुए हैं। For example, group 1 will show how plants change in different months like leaves, flowers or fruits. ग्रुप 1 दिखाएगा कि महीनों में प्लांट्स की पत्तियां, फूल या फल कैसे बदले हैं। ग्रुप 4 कैन शो हाउ पॉन्ड्स, puddles और रेन चेंज इन डिफरेंट मंथ्स। ग्रुप 4 दिखाएगा कि तालाब, गड्ढों का पानी और बारिश कैसे बदली। Once ready, present your poster to the class. पोस्टर तैयार होने पर क्लास में सबको दिखाओ। Step 4, looking at the year together. Once all the groups have made their presentations, form new groups. जब सभी ग्रुप्स अपने पोस्टर दिखा चुके हो तब नए ग्रुप्स बनाए जाएंगे। बनाओ। Make sure that the new group has one student from each theme. Form 4 groups, one for each time period. हर नए ग्रुप में हर थीम का एक स्टूडेंट होना चाहिए। ग्रुप 1 अप्रैल टू जून, ग्रुप 2 जुलाई टू सितंबर, ग्रुप 3 अक्टूबर टू दिसंबर, ग्रुप 4 जनवरी टू मार्च. Each group will now analyze the observations on the chart across all 5 themes but for their chosen time period. हर ग्रुप अपने मौसम से जुड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस को समझेगा। Use these observations to create a short story about your time period. For example, January to March, linking what you saw in nature with what you have noticed in people's lives. Read it out in the class. इन ऑब्जर्वेशन से एक छोटी सी स्टोरी बनाओ। नेचर और लोगों के लाइफ्स को जोड़कर कहानी बनाओ और अपनी क्लास में स्टोरी को पढ़कर सुनाओ। Discovering seasons. We have seen how plants changes, how animals behave, how the air feels, what happens with water and what people do throughout the year. हमने देखा कि
प्लांट्स कैसे बदलते हैं, एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, हवा कैसे लगती है, पानी में क्या चेंजेस होते हैं, लोग साल भर क्या क्या करते हैं। यू नाउ नो दैट नेचर चेंजेस स्लोली ओवर द ईयर। अब तुम जानते हो कि नेचर धीरे धीरे बदलती है। The weather warms up, gets hot, and then it rains, and then it gets cooler before warming up again. पहले गर्मी बढ़ती है, फिर बारिश होती है, फिर ठंड होती है और दोबारा गर्मी आ जाती है। We observe these changes throughout the year, but do you think the same thing happened last year too? हम पूरे साल भर में ये changes observe करते हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि सेम थिंग लास्ट ईयर भी हुआ था? Will they happen again the next year? अगले साल भी सेम होगा? Yes. These changes follow a pattern, a natural rhythm that repeats itself every year. हाँ, ये changes एक patterns follow करते हैं। इसी repeating patterns को seasons कहते हैं। These repeating patterns in nature is what we call seasons. What are the seasons called in your region? तुम्हारे region में, इलाके में seasons ऋतुओं को क्या कहते हैं? India hosts both the wettest place on earth, Mawsynram in Meghalaya, and one of the driest, the Thar Desert. भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान मौसिनराम जो कि मेघालय में है, और सबसे सूखा इलाका थार डेजर्ट, थार मरुस्थल भी भारत में ही है। डू यू नो हाउ मेनी सीजन्स वी हैव इन इंडिया? क्या तुम्हें पता है भारत में कितनी सीजन्स होती है, ऋतुएं होती है? In India, we experience 6 seasons based on how nature changes in every few months. भारत में नेचर के चेंजेस के आधार पर 6 ऋतुएं, 6 सीजन्स होती है जो हर कुछ महीनों में बदलती है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे ये पिक्चर में बच्चे झूला झूल रहे हैं, पेड़ हरे हैं, तो ये स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु है। इस पिक्चर में लड़का पसीना पोंछ रहा है, जिसे यह दर्शाता है, दिखाता है, जिसे यह समझ में आता है कि यह समर सीजन है, बहुत गर्मी है। थर्ड पिक्चर में बच्चे बारिश में रेनकोट पहने हैं, मतलब मॉनसून, वर्षा ऋतु। फोर्थ पिक्चर में मौसम साफ है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी है, ऑटम, शरद ऋतु। यहाँ पर हल्की ठंड है, यहाँ पे बच्चे ने स्वेटर पहना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। प्री विंटर, हेमंत ऋतु, आउटडोर गेम्स चल रहा है। यहाँ पर बच्चा ठंड से कांप रहा है, विंटर, शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है। सब सीजन्स के अकॉर्डिंगली इस पिक्चर को दिखाया गया है, इस पिक्चर्स में दिखाया है सीजन्स को। During the monsoon, snakes come out of flooded burrows. This is why Nag Panchami is celebrated to show respect to nature and reptiles. बरसात के मौसम में सांप अपने बिल से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उनके बिल में पानी भर जाता है। इसी कारण नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है ताकि नेचर और रेप्टाइल्स के प्रति सम्मान और आदर किया जा सके। यहाँ पर एक टेबल है, सीजन्स, कौन से सीजन्स है और मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा मंथ में ये सीजन्स होते हैं। वसंत, स्प्रिंग, फेब्रुअरी टू मार्च। ग्रीष्म, समर, अप्रैल टू जून। वर्षा, मॉनसून, जुलाई टू सितंबर। शरद, ऑटम, अक्टूबर टू नवंबर। हेमंत, प्री विंटर, नवंबर टू दिसंबर। शिशिर, विंटर, दिसंबर टू जनवरी। When you see ants carrying eggs to higher ground, it is a natural sign that rain is coming soon. जब चींटियां अपने अंडे ऊंची जगह ले जाती है तो ये संकेत होता है कि जल्दी बारिश होने वाली है। जानवर और कीड़े हमें मौसम का इशारा देते हैं। How do you feel when the season changes? आप कैसे महसूस करते हो जब ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है, चेंजेस? Would you prefer one season to continue throughout the year? क्या आप प्रिफर करोगे एक ही सीजन पूरा साल भर रहना चाहिए? Give the reasons for your answer. यहाँ पर सबके आंसर्स अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर हर सीजन कुछ ना कुछ नया देता है, तो आंसर होना चाहिए I feel excited when the season changes
because each season is different. I would not prefer only one season throughout the year because different seasons make life interesting and help nature stay balanced. Discuss. Winter in Kerala is different from winter in Kashmir Valley. Monsoon in Assam is different from Rajasthan. Why do you think it is so? This happens because different regions have different geographical features like mountains, deserts, and oceans. These affect climate and rainfall. Celebrating seasons. In India, we have many songs associated with seasons. Do you know any? Find out some songs. भारत में हर सीजन से जुड़े कई सॉन्ग्स होते हैं. क्या आपको पता है कोई ऐसा सॉन्ग? और उसके बारे में फाइंड आउट करो. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स. किसान अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें उगाते हैं. सम क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन विंटर व्हाइल सम ग्रो बेस्ट इन हीट ऑफ समर. कुछ फसलें सर्दी में अच्छी उगती है जबकि कुछ फसलें गर्मी में अच्छी होती है. सम आर प्लांटेड इन द रेनी सीजन्स बिकॉज दे नीड मोर वाटर टू ग्रो. कुछ फसलें बारिश में बोई जाती है क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी लगता है ग्रो करने के लिए. With the help of your teacher and elders, name the crops that grow in summer and winter in your region. अपने टीचर्स और एल्डर्स बड़ों की मदद से उन क्रॉप्स का नाम लिखो जो विंटर और समर में आपके इलाके में, आपके रीजन में ग्रो किया जाता है. समर क्रॉप्स एंड विंटर क्रॉप्स. समर क्रॉप्स में क्या आता है? राइस, चावल, मेज, मक्का, शुगर केन, गन्ना, कॉटन, कपास, ग्राउंडनट, मूंगफली. विंटर के क्रॉप्स क्या होते हैं? वीट, गेहूं, बरली, जौ, ग्राम, चिकपीस, चना, मस्टर्ड, सरसों, टी, मटर. ये सब क्रॉप्स समर और विंटर में ग्रो किए जाते हैं. मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विथ सीजन्स. हमारे बहुत से त्योहार मौसमों से जुड़े होते हैं. See if you can match these festivals to the seasons they are celebrated in. देखो क्या तुम इन त्योहारों को सही मौसम से जोड़ सकते हो? किसान फसल की कटाई के बाद खुशी मना रहे हैं. मकर संक्रांति में पतंग को उड़ाई जाती है, यह सर्दियों में होता है. दिवाली में दीप जलाए जाते हैं, यह फसल कटाई के बाद आता है. नए साल में नई फसल का स्वागत किया जाता है, बैसाखी और गुड़ी पाड़वा. सभी पिक्चर्स अलग अलग सीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स को दिखाता है. यहाँ पे फेस्टिवल है और सीजन दिया हुआ है, उसका मैच द फॉलोइंग करना है. पोंगल, मकर संक्रांति, वो कब आता है? वो आता है विंटर में, जैन में. होली कब आता है? होली आता है स्प्रिंग, व्हेन फ्लावर्स ब्लूम. दिवाली ऑटम, आफ्टर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. बैसाखी, गुड़ी पाड़वा, विष्णु, रंगोली, बिहू. न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. Every season brings something special and has its own magic. हर मौसम कुछ खास लेकर आता है. Seasons are not just changes in weather, they shape everything around us. मौसम केवल तापमान नहीं बदलते हैं, वे हमारे जीवन को शेप देते हैं, जीवन को आकार देते हैं. We have seen that seasons help us know how plants grow, how animals live, what people eat, where and do. From the crops we harvest to the festivals we celebrate. Seasons give rhythm to our lives and remind us that change is natural and necessary. मौसम से हमें प्लांट्स, एनिमल्स और इंसानों की आदतें समझ आती है. हमारी फसलें और त्योहार दोनों मौसमों पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं. मौसम हमारे जीवन को एक रिदम देता है. चेंजेस नेचर का नियम है और जरूरी है. In this way, seasons not only shape what we do, but also teach us about the cycles of life. Seasons हमें लाइफ साइकिल के बारे में सिखाते हैं. By understanding the seasons, we understand how life moves in cycle. As you step out each day, you are witnessing nature's rhythm unfolding one season at a time.
हर दिन हम प्रकृति की रिदम को बदलते हुए देखते हैं। हर मौसम कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं। मौसम सिर्फ ठंडी, गर्मी और बारिश नहीं बदलते, बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पौधे कैसे बढ़ेंगे, जानवर कैसे रहेंगे, लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और कौन से त्योहार मनाएंगे, ये सब मौसम पर निर्भर करता है। मौसम हमारे लाइफ को एक रिदम और एक बैलेंस देता है, जो हमें सिखाता है कि चेंजेस प्रकृति का नियम है। मौसम को समझकर हम यह समझ पाते हैं कि लाइफ भी एक साइकिल में चलता है। लाइफ साइकिल, जीवन भी एक चक्र में चलता है। थैंक यू।